इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मास्टर्स थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं फॉर एनालाइजिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स इन रिकर्सिव एल्गोरिदम्स। तो मास्टर्स थ्योरम समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कब हम ये बोलते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से पॉलिनॉमियली फास्टर ग्रो करता है। ऐसा हम तब बोलते हैं जब लेट्स से देयर आर टू फंक्शन y of n and x of n such that y of n multiplied by n raised to the power epsilon divided by x of n की लिमिट for n tending to infinity is 0 for some positive epsilon। ये एप्सिलॉन बहुत छोटा हो सकता है, जितना मर्जी छोटा ले लो, बट वो 0 से बड़ा होना चाहिए। फॉर सम पॉजिटिव एप्सिलॉन अगर ये लिमिट 0 है तो हम बोलते हैं कि x इज ग्रोइंग पॉलिनॉमियली फास्टर देन y। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। n raised to the 4 and y is raised to the n to the power y is equal to x is equal to n raised to the 5 and y is equal to n raised to the 5.01। तो इसमें अगर मैं n raised to the power 5.01 को सम n to the power एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको डिवाइड करूं n raised to the 5 से, तो क्या आएगा? n raised to the 0.01 मल्टीप्लाइड बाई n raised to the एप्सिलॉन। तो अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो दिस विल बिकम n raised to the some पॉजिटिव पावर 0.01 प्लस एप्सिलॉन, जो जिसकी लिमिट 0 नहीं होने वाली फॉर n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो आंसर इज नो। In the other case, second case, n x is equal to n raised to the 4, ये हो जाएगा n raised to the power epsilon upon n raised to the power 0.01। तो अगर हमने एप्सिलॉन को 0.01 से छोटा ले लिया, लेट्स से 0.005 ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 upon n raised to the power 0.005 which will become 0 for n tending to infinity। तो आंसर इज यस इन सेकंड केस। In third case, x is equal to n raised to the power 0.01 and y is equal to log n. The answer is again yes, but it's not very intuitive. So let's assume that n is a very big number, n is 2 raised to the power 2000. So if n is equal to 2 raised to the power 2000, x will become 2 raised to the power 20 because इसकी पावर जब हम 0.01 करेंगे तो it will become 2 raised to the power 20। Okay, so this is 2 raised to the power 20 and y will become, इसका जब log लेंगे base 2 तो ये आ जाएगा 2000 and 2000 is smaller than 2048। Why I am comparing this with 2048? Because I know that 1024 is 2 raised to the power 10, and by making this comparison I can say that 2000 is less than 2 raised to the power 11. So if y is less than 2 raised to the power 11, then it's definitely less than x because x is 2 raised to the power 20. So here the answer is yes, x is growing polynomially faster than y। So एक और इस केस को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, log n की बजाय log n मल्टीप्लाइड बाई log n करते हैं। अगर log n को y is equal to log n मल्टीप्लाइड बाई log n करेंगे तो this for this case n is equal to 2 raised to the power 2000, this will become 2 raised to the power 22, इसका स्क्वायर करेंगे 2 raised to the power 22 हो जाएगा, which will be bigger than x। But hold on, maybe this n is small and not big enough। थोड़ा और बड़ा लेते हैं n। हमने n की वैल्यू और बड़ी ली, n की वैल्यू 2 raised to the power 10,000 ली और उसके बाद चेक किया तो x is equal to 2 raised to the power 100 आया और y is equal to 10,000 multiplied by 10,000 आया। Let me give you a pause and then just convince yourself कि y is equal to 10,000 multiplied by 10,000 है, and just go with these inequalities and equalities at your own pace। I'll pause for 5 seconds। So I think you have convinced yourself that y is less than x here for a very huge n like n equal to 2 raised to the power 10,000, which means the answer here is again x is larger
for sufficiently large values of n, and the answer is yes. Okay, so let's do this case now. X is equal to n raised to the power 4.01 and y is equal to n to the power 4 log n. तो यहाँ फिर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं n रेस्ट टू 0.01 और log n का, और ये कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर भी सेम आएगा जो यहाँ आया था. यस, यहाँ भी यस आया था तो यहाँ भी यस आएगा. ओके, नाउ द लास्ट केस, x इज इक्वल टू n रेस्ट टू 4 एंड y इज इक्वल टू n रेस्ट टू 4 log n. यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आंसर इज नो, और इसको चेक करते हैं इस लिमिट में डाल के. इस लिमिट में डालेंगे तो ऊपर आएगा n रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन और नीचे आएगा नहीं, n रेज़ टू एप्सिलॉन इनटू log n. और आप एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी भी छोटी ले लोगे, दिस विल नॉट टेंड टू 0. Even in reverse case, even if x is n raised to the 4 log n or y is equal to n raised to the 4, the answer will still be no. n की पावर यहाँ अगर 4 है तो इधर 4 से थोड़ी सी ज़्यादा होनी पड़ेगी. let me write it down. अगर मैं x की वैल्यू n raised to the 4 log n लिखता हूँ और y की वैल्यू just n raised to the 4 लिखता हूँ, तो भी the answer is still no. x is not growing polynomially faster. ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, n raised to the power epsilon अपॉन log n में. और हमने देखा हुआ है कि n to the power epsilon जब एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है n का, that always grows faster than logarithmic function. तो this will grow very fast for Hughes n, and this will be tending to, this limit will become infinity. That's why the answer for this case also, when x is equal to n raised to 4 log n, y is equal to n raised to 4, the answer is still no. Okay, अब next slide पर move on करते हैं. तो ये आ गई हमारी मास्टर्स थ्योरम. मास्टर्स थ्योरम किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? मास्टर्स थ्योरम मास्टर रिकरेंस को सॉल्व करती है. मास्टर रिकरेंस is recurrence stated in this form, where let's say time complexity where the input size is n को हम एक फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं t of n. तो t of n is, let's say we are able to write t of n is equal to a multiplied by t of n by b plus f of n. यहाँ पे a और b दोनों ही पॉजिटिव कांस्टेंट है, प्लस f of n. ये एक और फंक्शन है जो, जैसे हम रिकरेंस में क्या करते हैं कि रिकर्जन प्रॉब्लम्स में हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर एलिमेंट्स में, स्मॉलर इनपुट साइजेस में, और हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट्स से स्मॉलर इनपुट साइजेस के रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, और उससे हम जो लार्जर ओरिजिनल इनपुट साइज था उसका आंसर अगर हमें निकालना है, तो उन दोनों आउटपुट्स को, या तीन मतलब जितने भी छोटे छोटे साइज में हमने प्रॉब्लम को बांटा था, उन सब के रिजल्ट्स को कंबाइन करना पड़ता है, और वो कंबाइन करने में भी थोड़ा टाइम लगता है. तो लेट्स से वो जो कंबाइन करने में टाइम लग रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय f of n. तो ये इक्वेशन हो जाएगी t of n इज इक्वल टू a t of n by b प्लस f of n. f of n को हम ड्राइविंग फंक्शन बोलेंगे, ड्राइविंग फंक्शन. ठीक है, तो ये जो ड्राइविंग फंक्शन है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डिसाइड करने में कि ओवरऑल t of n का ऑर्डर क्या होगा. तो कई बार ऐसा होता है कि हमने टॉप लेवल पे शुरू किया, लेट्स से n की वैल्यू थी 2 raised to the power 20, तो 2 raised to the power 20 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो दो पार्ट्स लेट्स से 1000 था, n इज इक्वल टू 1000, तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया 500 500. जो 500 साइज की जो दो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया, और उनको कंबाइन करने में जो एफर्ट लग रहा है, लेट्स से वो जो कंबाइन करने वाला एफर्ट है वो छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एफर्ट जो लग रहा है उससे काफी बड़ा है. लेट्स से f of n इज मच लार्जर देन जो भी बाकी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है उससे. तो फिर हमारा जो रिजल्ट होगा t of n, दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ f of n. ठीक है. दूसरा क्या हो सकता है केस कि f of n बहुत छोटा है, इनको कंबाइन करने में बहुत कम टाइम लग रहा है. मेन टाइम क्या लग रहा है कि कितनी बार इनको
इस n को हम बार बार छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे, और जब भी हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में एक एफर्ट लगेगा, और कितने डिविजन्स होंगे तो उसका, अगर वो जो क्वांटिटी है कि बहुत ज़्यादा डिवीजन अगर हो गए और वो अगर एफ ऑफ एन से बड़ी हो गई, तो फिर हमारा जो आउटपुट होगा टी ऑफ एन, दैट विल बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन of the order of a polynomial function, which shall be denoted by something like n raised to the power log a base b. अब ये जो क्वांटिटी है ना n raised to the power log a base b, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इसको भी हमने एक नाम दिया है वाटरशेड फंक्शन। ये बताता है कि कितने ज़्यादा लीव्स बनेंगे, और जो जब भी हम एक रिकर्जन प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं, तो उसका जब हम ट्री बनाते हैं तो पहले एक रूट से कुछ एक्स ए ट्रीज ए नोड्स बनेंगे, फिर उसके बाद और हर एक नोड से और ए नोड्स बनेंगे, तो ऐसे बहुत सारे नोड्स बनेंगे, और वो हर एक नोड पे कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो जो टोटल काम है वो अगर एफ ऑफ एन से बहुत बड़ा है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो n रेज़्ड टू द पावर log a बेस b आएगा। तो हमें मास्टर्स थ्योरम यूज करने के लिए ये फॉर्मूला, ये फंक्शन कंप्यूट करना पड़ेगा। ये फंक्शन कंप्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक है वाटरशेड फंक्शन। वाटरशेड फंक्शन इज n रेज़्ड टू द पावर log a बेस b। ये वाटरशेड फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एन विच इज ड्राइविंग फंक्शन। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर ये आया कि वाटरशेड फंक्शन इज ग्रोइंग पॉलिनोमियली फास्टर देन ड्राइविंग फंक्शन, अगर वाटरशेड फंक्शन इज ग्रोइंग पॉलिनोमियली फास्टर देन ड्राइविंग फंक्शन, तो हमारा आंसर, अगर ये फास्टर है तो हमारा आंसर आ जाएगा थीटा ऑफ दिस। अगर ऐसा नहीं है, अगर रिवर्स है, लेट्स से ये जो ड्राइविंग फंक्शन है दैट इज ग्रोइंग पॉलिनोमियली फास्टर देन दिस वाटरशेड फंक्शन, तो हमारा आंसर आ जाएगा थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। और तीसरा केस वो आएगा जब इन दोनों में हम ये नहीं कह पाएंगे कि वन फंक्शन इज ग्रोइंग पॉलिनोमियली फास्टर देन द अदर वन, बट हम ये बोल पाएंगे कि जो ये एफ ऑफ एन है, अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वाटरशेड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय log n रेज़्ड टू द पावर k, तो हमारा आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर t ऑफ n विल बी थीटा ऑफ दिस वाटरशेड फंक्शन n रेज़्ड टू द पावर log a बेस b मल्टीप्लाइड बाय log n की पावर k प्लस 1। तो ये जो भी फंक्शन है इसको हम log n से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये तीन केस होंगे, और हम इन तीनों केसेस से आंसर बता सकते हैं कि टी ऑफ एन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, पिछली स्लाइड पे वाटरशेड फंक्शन का जिक्र किया था। तो वाटरशेड फंक्शन ये होता है n रेज़्ड टू द पावर log a बेस b। और okay, let me pause for 10 seconds and you can read it on your own.
तो अब करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से अभी तक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अब क्लियर हो जाएगा। तो मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम्स इस फॉर्मेट में दी होती हैं और हमें बस ये देखना है कि जो ये b है इसकी पावर कितनी करें कि a आ जाए, 3 की पावर कितनी करें कि 9 आ जाए, आंसर इज 2। तो हमारा watershed function will be n raised to power 2. n raised to power 2 is polynomially faster than n, तो आंसर हो जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर। इस केस में 3/2 की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए और आंसर होगा 0। तो इसका मतलब वाटरशेड फंक्शन इज n रेज्ड टू पावर 0। n रेज्ड टू पावर 0 को 1 भी n रेज्ड टू पावर 0 है, तो दोनों कंपेरेबल हैं। दोनों कंपेरेबल हैं तो क्या करना होता है, ये जो फंक्शन है इसको log n से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 1 को log n से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी थीटा ऑफ log n। थर्ड एग्जांपल में 4 की पावर कितनी करें कि 3 आ जाए, तो दैट आइटम विल बी रिटन एज log 3 बेस 4, जिसका वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 0.793। तो watershed function is n raised to the power 0.793 और ड्राइविंग फंक्शन इज n log n। तो n log n और n रेज्ड टू पावर 0.793 को अगर मैं कंपेयर करूंगा, एक तरफ है n रेज्ड टू पावर 0.793 और दूसरी तरफ है n log n, तो उसमें n रेज्ड टू पावर 0.793 से n बड़ा है और उसके बाद log n से मल्टीप्लाई करने के बाद और बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ड्राइविंग फंक्शन, दैट इज पॉलिनोमियली फास्टर, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा n log n, थीटा ऑफ n log n। नेक्स्ट एग्जांपल इज 2t(n/2), 2 की पावर कितनी करें कि 2 आ जाए 1। इसका मतलब हमारा वाटरशेड फंक्शन इज n रेज्ड टू पावर 1। n रेज्ड टू द पावर 1 से n log n, क्या ये बड़ा है, पॉलिनोमियली फास्टर है? n रेज्ड टू द पावर n और n log n, ये दो फंक्शन है, एक तरफ है n और एक तरफ है n log n। क्या इनमें से ये फंक्शन पॉलिनोमियली फास्टर है, दूसरे से नहीं है? फिर नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि ये कंपैरेबल है। कंपैरेबल है तो हम ये चेक करेंगे कि जो f ऑफ n ड्राइविंग फंक्शन है उसमें log n की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। log n की पावर पॉजिटिव है, गुड। तो हमारा आंसर होगा ड्राइविंग फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय log n। तो n log n को एक बार और log n से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा थीटा ऑफ n log स्क्वायर n। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में फिर 2 की पावर कितनी करेंगे 2 आए 1। तो हमारा वाटरशेड फंक्शन हो गया n की पावर 1। n की पावर 1 को n से कंपेयर करेंगे, दोनों कंपेरेबल हैं तो सिंपली इसको log n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n log n इज माय आंसर। इस केस में 2 की पावर कितनी करेंगे 8 आ जाए 3। तो n की पावर 3 इज माय वाटरशेड फंक्शन। अगर मेरा वाटरशेड फंक्शन n की पावर 3 है और ड्राइविंग फंक्शन इज 1, तो ऑब्वियसली n की पावर 3 बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थीटा ऑफ n क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो एग्जांपल है स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम का। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम पे, आप देख सकते हो। एक्चुअली वो उस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम को नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा लेस देन 1 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हो। बट एनीवेज स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम में ये इक्वेशन बनती है, उसमें वाटरशेड फंक्शन हो जाएगा n रेज्ड टू द पावर log 7/2। log 7/2 3 से थोड़ा सा छोटा होता है और 2 से बड़ा होता है, तो n स्क्वायर से फिर भी ये बड़ा है, n स्क्वायर से बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा n रेज्ड टू द पावर log 7/2। बेस 2 इज हमें लिखना जरूरी नहीं है, तो इसको हम सिंपली n रेज्ड टू द log 7 लिख सकते हैं। सो ये एग्जांपल हो गए, कुछ और एग्जांपल करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल करते हैं। पहले एग्जांपल में 4 की पावर कितनी करें कि 2 आ जाए 1/2। इसका मतलब वाटरशेड फंक्शन इज n रेज्ड टू पावर 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n को 1 से कंपेयर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n इज पॉलिनोमियली फास्टर, तो हमारा आंसर हो जाएगा थीटा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। दूसरे में 4 की पावर कितनी करें कि 2 आ जाए 1/2, मतलब n की पावर 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n इज कंपेरेबल टू दिस ड्राइविंग फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ n। इसका मतलब हम ड्राइविंग फंक्शन को सिंपली log n से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। थर्ड में 4 की पावर कितनी करेंगे 2 आ जाए 1/2, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ n विल बी माय
वाटरशेड फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ n इज कंपेरेबल टू दिस ड्राइविंग फंक्शन, इसमें सिर्फ log n है एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे, इस log स्क्वायर n को एक log n से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो log क्यूब n हो जाएगा। माई आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई log क्यूब n। ओके, फोर्थ में 4 की पावर कितनी करेंगे, 2 आ जाए, अगेन 1/2, n की पावर 1/2 इज स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n को हम n से कंपेयर करेंगे तो दिस ड्राइविंग फंक्शन n इज लार्जर, तो माई आंसर विल बी थीटा ऑफ n। उससे अगले में अगेन 4 की पावर कितनी करेंगे, 2 आ जाए, 1/2, n की पावर 1/2 करने पे स्क्वायर रूट ऑफ n आता है, स्क्वायर रूट ऑफ n से n स्क्वायर बड़ा है, इसका मतलब माई आंसर विल बी थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो I think that's all. Thank you for watching so far.